everyone. I hope you're all having a wonderful day so far. Welcome to this exclusive fortnightly session on From Theory to Practice Robotics in Healthcare and Industry, tailored exclusively for students from grades 3rd to 12th. It's a pleasure to have each of you join us today. I'm Aniket Arora, your moderator for this session, and I'm honored to guide you through this topic. Before we delve into the content, I want to express my sincere gratitude to all of you for joining this workshop. Your participation truly enhances this gathering and makes it a more enriching experience for everyone. Unfortunately, our speaker, Dr. Ranjan Jha, is not available to take part in this session. However, instead of him, we have Mr. Dhruva Kanzode, who is a doctoral student working with Dr. Ranjan Jha. He is currently at École Centrale de Nantes, France. His research domain is medical surgical robotics. We are thrilled to have all of you with us as we explore this crucial aspect of robotics in healthcare and industry. In today's session with our speaker, Mr. Dhruva, we will be diving into the importance of robotics in healthcare and industry. Mr. Dhruva will share insights into the application of robotics in these critical fields, providing examples from his research and experience in medical surgical robotics. We'll explore how robotics can revolutionize surgery, enhance medical procedure, and bring transformative changes to industrial operations. Throughout this session, feel free to ask questions and engage in discussions, as this will be a dynamic learning experience for all of us. Once again, thank you for being here, and let's dive into this exciting topic with Mr. Kanzode. For those new to our platform, I would like to inform you that CAMP, the Knowledge and Awareness Mapping Platform, is not just an initiative. It's a commitment to bridging the gap between education and practical application. Our mission is to cultivate a scientific mindset among students while nurturing their hidden talents. I would like to mention that apart from these online knowledge sharing sessions, CAMP also organizes various quiz competitions as well as scientific excursions for students. The excursions provide the students with a unique opportunity to delve into the world of science, technology, and innovation. They are aimed to instill a passion for scientific exploration and discovery within the students. Don't miss out on the opportunity to visit various prestigious labs and organizations like the CSIR, ISRO, DRDO, and many others. If you would also like to participate in such excursions and get a chance to explore, discover, and engage with various scientific disciplines in real-world setting at various eminent laboratories like CSIR or ISRO or DRDO, then do check out the link below to learn more about how you can participate. For any support, you can even get in touch with our team through the given helpline number in the chat box below. For further information and resources, please visit our website or contact us at the given link and phone number. So let's dive into the importance of robotics in healthcare and industry. Let's invite Mr. Dhruva to share insights into the applications of robotics in these critical fields, providing examples from his research and experience in medical surgical robotics. Let's explore how robotics can revolutionize surgery, enhance medical procedures, and bring transformative changes to industrial operations. I would again like to encourage all of you to actively participate in this program, ask questions, and share your thoughts during the session. Your engagement is crucial to making this program a fruitful and dynamic one. Well, without further ado, let's welcome Mr. Dhruva to begin our session. Mr. Dhruva? Hi, Aniket. Am I audible? Yes, you're audible. Perfectly fine. Oh, okay. First of all, thank you so much for such a great introduction. And yes, I will start my video. Okay, yeah. I'm visible now? Yeah, okay, nice. Yes. So thank you so much for your great introduction. And I would like to apologize from Dr. Ranjan's side too, because of some you can say, because of his engagement, he will not be able to join us today. But instead of him, I will be giving this presentation. So yes, you have introduced me altogether,
but I would like to introduce myself once again. Hello everyone, my name is Dhruva. I am a doctoral researcher working with Dr. Ranjan Jha at CSIR CSIO Chandigarh, and I am currently working in École Centrale des Nantes, which is in France. So I am currently working here since past 1 year. So we will be diving into the information, or you can say, a very productive session regarding robotics in healthcare and industry. So I think I should share my screen. Just let me know when this is visible, okay? Yes, we can see your screen. Very nice. Just confirm whether you can see it in full screen. So it's good for you. Okay. So is it okay, or are you just still seeing my user interface, or it's good now? No, we can see your presentation, the first Okay. screen, Okay. Thank you so much. perfectly. So, okay. So I see some hands are raised before the presentation. So shall we take them, or we can take them afterwards? As you. That's all on you. We are fine, but we are fine both ways. Uh, Your call. okay. Let's ask the children first, because I am seeing they are very young students. Sure, So sure. I let just us like let us to take the questions. I just like to Whatever they. mention that the students are on mute, and Okay. so in case if we want to take the questions, we can just call them and we can. Okay, so first of all, like we have Abhash Tapa Chetri. Can you please unmute yourself and ask your question? And it would be great if you guys can turn on your video as well. Yes, it will be very nice. So it will be quite more interactive that way. So if you have any question, please turn on your video and raise your hand. We'll call you up one by one. Yeah, I think we can proceed. Okay. 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 I think we can proceed. Okay. So yes. Okay. So hello everyone, and let's start this presentation. So we will be discussing today upon a topic of from theory to practice, robotics in healthcare and industry. Now, as you may know, healthcare and industry, from the sound of it, they are two very different scenarios. Like healthcare, we all know deals with medicine and science and all that is being with the well-being of a human being. Otherwise, industry mostly concerns about the manufacturing part, or the, you can say, the factories and everything. So we'll be encompassing both, but let's start with some of the basics. Okay. Okay. Uh, okay. For today's agenda, we will be discussing upon firstly the basics. What is robotics? What is the history of it? What are the different type of robotics that we see in day-to-day world? Then we have robotics in healthcare, especially. Then we have robotics in industry, and finally we'll just touch upon the robotics that we see in everyday life and what are the future trends about it. Okay. So yes. So first thing first, what is robotics? Robotics क्या है? Robotics is a field of technology that focuses upon designing and utilization of robot. मतलब हम जिस तरह से एक रोबोट को कंसीव, डिजाइन और उसके बाद यूटिलाइज करते हैं, वो पूरी पूरी फील्ड कहलाती है रोबोटिक्स. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड रोबोट्स और व्हाई डू वी नीड रोबोटिक्स, पर्पस क्या है? सो इनिशियली 1960s में, 1970s में रोबोट्स का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था ताकि वो उन कामों को कर सके जो एक ह्यूमन वर्कर के लिए डेंजरस है या रिपीटेटिव है.
या फिर उससे एक ह्यूमन बीइंग को तकलीफ हो सकती है। तो टू सेव अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम ऑल दोस वर्क, they were substituted by a machine that they called robot. Now, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि फैक्ट्रीज में तो मशीन भी होती है और फैक्ट्रीज में रोबोट भी होते हैं, तो मशीन और रोबोट में क्या फर्क है? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय द basic first year or engineering student everywhere all over the world. So what is the difference between a robot and a machine? So, और हम जब एक रोबोट के बारे में सोचते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट ह्यूमन रोबोट, जो एक ह्यूमन की तरह दिखता है, ह्यूमन की तरह चलता है, जैसे टर्मिनेटर मूवीज में होती है, ठीक है, उस तरह से। या आप स्टार वॉर्स देखते हैं, या जो हमने मूवीज में देखे हैं जो दो पैर पे चलने वाले, दोज आर ऑल्सो रोबोट्स, दोज आर ह्यूमन रोबोट्स। बट रोबोट सिर्फ वैसा नहीं दिखता, आपका एक छोटी से छोटी चीज भी आप उसको रोबोट कह सकते हो। अब मशीन और रोबोट में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि रोबोट सोच सकता है। मशीन is a is a device that once you program it and you run it, it continuously keep doing the work that it is assigned to. इसका मतलब है कि अगर जैसे आप किसी चीज को एक टास्क करने के लिए प्रोग्राम कर देते हो, तो वो मशीन उसी चीज को बार बार दोहराती रहेगी, भले ही उसमें कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, भले ही उसका कोई एरर आ जाए, भले ही उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, बट जब तक आप उसे मैन्युअली रोकेंगे नहीं, तब तक वो चीज वही रिपीटेटिव काम करती जाएगी। बट यही चीज है जो रोबोट को मशीन से अलग करती है। रोबोट के पास खुद का एक दिमाग होता है। रोबोट के पास कहो खुद के सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में सेंसर्स होते हैं, हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारे कान है, हम कानों से सुनते हैं। तो रोबोट इज अ मशीन विथ सेंसर्स एंड ब्रेन। तो अगर एक रोबोट को काम करते वक्त कोई एक ऐसा सेंस आता है कि अरे दिस थिंग इज स्टक, ये अटक गया है, या ये चल नहीं रहा है, या मेरे पास ये चीज आई नहीं है, सो इट वो खुद से रुकता है, एंड देन ही टेक्स अनदर रूट। वो कोई वो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा अटेम्प्ट करता है या कोई दूसरी तरह से ट्राई करता है। तो जो मशीन या जो सिस्टम इनपुट्स ले और उन इनपुट्स को प्रोसेस करके एक ऑल्टरनेटिव वे निकाले, वो होता है रोबोट। और जो मशीन सिर्फ सिंगल इनपुट पे रिपीटेटिव काम करती रहे, वो होती है एक सिंपल मशीन। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल दिया है। हमारे सबके घर में सबने कहीं ना कहीं वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, जो हम नॉर्मली मैन्युअली चलाते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर एज इट ओन इज अ मशीन, क्योंकि आप वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं और आप मैन्युअली उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, और वो कभी ये नहीं होता कि अगर कोई चीज वैक्यूम क्लीनर के माउथ में फंस गई है तो अपने आप से रुक जाए, या फिर रिवर्स चलना चालू करे, या जब आपके वैक्यूम क्लीनर के बैग भर जाए तो अपने आप रुक जाए, या आपको सिग्नल दे। नहीं, कुछ नहीं होता। बट ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर जैसे रूम्बा हो गया या एक और कोई डिवाइस हो गया, वो आपके घर में घूमता रहता है, सफाई करता रहता है। जब उसको लगता है कि नहीं मैं गलत पोजीशन पे आ गया हूँ, वो अपने आप अपने डायरेक्शन चेंज करता है, दूसरे डायरेक्शन में जाके सफाई करता है। जब उसे लगता है कि नहीं उसकी डस्ट बैग भर गई है, तो अपने आप सिग्नल देता है कि प्लीज रिप्लेस माई बैग थ्रू SMS, और यू कैन से थ्रू अ ब्लूटूथ डिवाइस और थ्रू अलार्म। सो इस ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर जैसे कि रूम्बा, उसे एक खुद का सोचने की कैपेसिटी है कि ही इज थिंकिंग अबाउट ओके ये हो गया है, सो आई कैन टेक दिस एक्शन। दिस थिंग कैन टेक एक्शन ऑन इट्स ओन, एंड अ मशीन कैन नॉट। जैसे रोबोटिक आर्म्स होते हैं फैक्ट्रीज में, वो सिर्फ रिपीटेटिव काम करते रहते हैं। सो दिस इज द बेसिक। when you think about robot, it's not only a mechanical gears rolling around, it also has its own mind, its programming, and its whole command structure. Then history of robotics, जब बहुत पहले लाइक 1940s या 1930s में रोबोट्स का कहते हैं आविष्कार हुआ, तो वो बेसिकली रोबोट्स नहीं थे, वो ऑटोमेटा कहा जाता था। वो पपेट्स होते थे जो एक सीरीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर से कुछ टास्क कर सकते थे, जैसे लिखना हो गया, या पपेट की तरह बोलना हो गया, जिसमें आवाज नहीं सिर्फ आई मूवमेंट होती थी, लिप मूवमेंट होती थी। बट क्योंकि तब इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो उसी को इसी मैकेनिकल ऑटोमेटा को रोबोट भी कंसिडर करा गया।
बट एक्चुअली वो रोबोट्स नहीं थे, वो एक सिंपल मैकेनिकल पपेट्स थे। जैसे हमने बड़े काफी शोज या सर्कस में देखे होंगे। सो दे वर नॉट एग्जैक्टली रोबोट्स। रोबोट्स का आविष्कार हुआ 1960s में, जब पहला इंडस्ट्रियल रोबोट अनवील किया गया टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो काम एक ह्यूमन वर्कर 2 घंटे में करता था, सेम काम इस मशीन ने 15 मिनट में करना शुरू कर दिया। तो मैकेनिकल काम, और जो उसके लिए काफी टायरिंग भी हुआ करता था कि एक वर्कर 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, इस मशीन ने 8 8 10 घंटे काम करना शुरू किया। तो इट रेवोल्यूशनराइज द मैन्युफैक्चरिंग डोमेन। और इसी के बाद हमें धीरे धीरे और नए एडवांस्ड और नए एप्लीकेशंस वाले रोबोट्स मिलना शुरू हुए। or currently in the 21st century, we are integrating machine learning and AI into our robotic system so that we can use them as abundantly as possible with various applications. आप कंपेनियन रोबोट्स के लिए एडवांस रोबोट यूज कर सकते हैं, आप होम सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर, आप कहो आपका एल्डरली, सबके लिए बहुत सारे आजकल रोबोट्स अवेलेबल हैं जो आप इस लेवल तक जाके कंपेनियनशिप दे सकते हैं कि आपको कभी अकेला फील नहीं होता, क्योंकि एल्डरलीज में काफी ये होता है कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। सो इमोशन सेंसिंग हो गया, देयर वेलबींग सेंसिंग हो गया, इन सब के लिए भी आजकल रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न रोबोट्स। Then let's come to how robots work. As I mentioned before, robots are something that have their own senses and that have their own brain. So रोबोट्स के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। क्योंकि अगर आप सिंपली समझना चाहें तो रोबोट और हमारी ह्यूमन बॉडी में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी किस तरह काम करती है, हमारे पास हमारे सेंसेस हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग। वैसे सेम चीजें एक रोबोट के पास भी होती है। रोबोट ऑल्सो हैव सेंसर्स। दो सेंसर्स गिव इट इनपुट्स, जैसे एनवायरमेंटल इनपुट हो गया, प्रोक्सिमिटी इनपुट हो गया, कौन सी चीज कितनी दूर है, कौन सी चीज कितनी भारी है, ये सब है एक इनपुट्स जो सेंसर्स एक रोबोटिक सिस्टम को प्रदान करता है। उसके बाद वो सेंसर्स का सारा इंफॉर्मेशन एक कंट्रोलर के पास जाता है, एंड कंट्रोलर उस चीज को एनालाइज करता है कि ओके, जैसे अगर एक रोबोट है और उसे कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठा के रखनी है, तो काफी सारे सेंसर्स ये सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या अगर कोई बॉक्स उठाना है तो क्या वो बॉक्स उस रोबोट के सामने है। अगर नहीं है तो फिर बॉक्स आने का वेट करेगा। अगर बॉक्स है तो फिर उस बॉक्स को उठाने का एक्शन करेगा। अब बॉक्स उठाने के टाइम पे भी सेंसर्स ये भी चेक करेंगे कि क्या ये बॉक्स हमारा जो वजन उठाने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा भारी तो नहीं है। अगर भारी है तो फिर वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अगर अंडर अंडर वेट है या फिर अंडर कैपेसिटी है तो फिर वो चीज को सक्सेसफुली पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पे रखा जाएगा। तो हमारे सेंसर्स ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में। फिर उस इंफॉर्मेशन को एक कंट्रोलर ने एग्जीक्यूट करवाया कि ओके, ये इंफॉर्मेशन इन क्राइटेरिया के बीच में होती है, तो हमारे लिए वो चीज सक्सेसफुल है और हम इसे एक्चुएट कराएंगे। अब जैसे हमारी बॉडी में हमें दिखता है कि हमें कोई चीज उठानी है, तो हमारा हाथ उस चीज को जमीन से ऊपर तक उठाता है, राइट। बट तो हमारा हाथ है जो उस चीज की एक्शन करवा रहा है। सेम चीज रोबोट में होती है। जब आपको कोई एक्शन, फिजिकल एक्शन करानी होती है, तो जो चीज उस फिजिकल एक्शन को एग्जीक्यूट करेगी उसे कहते हैं एक्चुएटर। जैसे कोई लीवर हो गया, कोई आर्म हो गया, या फिर कोई एक गियर हो गया। तो जो चीज फिजिकली मूव कर रही है, जो चीज फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है रोबोट के लिए, वो होते हैं एक्चुएटर्स। और फाइनली इन सब का इंटीग्रेशन होता है एक जो आप कह सकते हैं एक ब्रेन में, जो जिसमें आपका कंट्रोलर उस ब्रेन को कंट्रोल करता है। और वो मल्टीपल इंटरेक्शंस बेसिकली इस चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं कि सेंसर्स का डेटा आना, कंट्रोलर का उस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, उसके बाद एक्चुएटर को कमांड देना कि हाँ आप ये चीज एग्जीक्यूट करो। तो इन सब चीजों को आपका एक मेन सिस्टम
कहते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से एग्जीक्यूट करवाता है, तो वो है उसका इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, types of robot. Now, the most important part is there can be n number of types of robots as you, if compared upon what type of applications they perform. But for our concern and for our topic, we have normally selected the majority or you can say the most relevant types of robot that we can discuss. तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री में कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए या प्लेस किए जाते हैं। जैसे आपकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपका वेल्डिंग, आपका असेंबली, आपकी कार की पेंटिंग या इंस्पेक्शन कि कहीं कोई डेंट तो नहीं रह गया है या कहीं कोई स्क्रैच स्टिल रिमेनिंग तो नहीं है, कोई पार्ट अनपेंटेड तो नहीं है। So to do all these things or to take care of all those tasks, we have a separate category of industrial robots. ये रोबोट बहुत बड़े होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, इनकी कैपेसिटीज बहुत बड़ी होती हैं कि ये 200 किलो 500 किलो तक चीजें उठा सकते हैं। इनकी मूवमेंट भी प्रिसाइज होती है कि वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के अंदर भी आपकी वेल्डिंग आप करके दे सकते हैं। So these are kind of the huge robots which are normally applied in the industry. देन वी हैव सर्विस रोबोट्स। ये रोबोट्स आपके घर के लिए बने होते हैं। आपका जैसे ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर हो गया या जैसे कहो आपका एलेक्सा हो गया। एलेक्सा इज ऑल्सो रोबोट बिकॉज एलेक्सा आपकी बात सुनती है, आपकी बात को प्रोसेस करती है और आपकी बात को एग्जीक्यूट भी करती है। जैसे अगर आप एलेक्सा को कहोगे कि एलेक्सा 10 बजे का अलार्म लगाओ, तो आपकी आवाज सुन के एलेक्सा ने सबसे पहले उस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ मुझे इनपुट मिला है। सो योर वॉइस कमांड वाज द इनपुट फॉर एलेक्सा। देन एलेक्सा ने उस चीज को प्रोसेस किया अपने सिस्टम में कि अलार्म हैज टू बी सेट फॉर सच एंड सच टाइम। और जो उसका स्पीकर है दैट्स एन एक्चुएटर, दैट्स एन एग्जीक्यूटर जिसने उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके लिए एक अलार्म डेजिग्नेट करके टर्न ऑन किया ताकि आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाओ। सो ये सारी चीजें भले ही एक छोटी सी डिवाइस है एलेक्सा, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज अ रोबोट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर हमारा मेन आता है मेडिकल रोबोट्स। नाउ मेडिकल रोबोट्स एक बहुत ही न्यू और बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी से भरी हुई फील्ड है जहाँ पे जो मैनुअल सर्जरीज होती थी अब उन्हें सिर्फ मैनुअल ना रखते हुए रोबोट असिस्टेड और रोबोट सप्लीमेंटेड किया गया है। जैसे कि बहुत बार आप लोग सबने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, लाइक टू टू ट्रीट द एलिमेंट्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। सो इंस्टेड हम आजकल ओपन हार्ट सर्जरीज नहीं करते क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था, रिकवरी टाइम ज्यादा होता है, प्रोसीजर परफॉर्म करने का टाइम ज्यादा होता है। Doctors spend 9 hours, 10 hours in the surgical room. So doctors are also getting so much tired. So instead, now बहुत जगह पे मेडिकल रोबोट्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है जो एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी परफॉर्म करती है। ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी क्या है वो हम बाद में जानेंगे, बट इट इज अ टाइप ऑफ सर्जरी दैट these robots help us do or these devices help us do. मेडिकल रोबोट्स में ऐसा नहीं होता कि हर रोबोट एक ऑटोमेटेड रोबोट है, ये डॉक्टर्स आर डूइंग नथिंग। दीज रोबोट्स आर बेसिकली मास्टर स्लेव टाइप रोबोट्स जहाँ पे एक डॉक्टर पेशेंट के पास खड़े रहकर सर्जरी परफॉर्म करने की जगह एक कंसोल पे बैठ के आपका सर्जरी परफॉर्म करते हैं और वो रोबोट एक दूसरी जगह पे एक सर्जिकल सूट के अंदर उस बॉडी पे या उस पेशेंट पे वो सारे एक्शन मिमिक करता है जैसा आपका सर्जन उस कंसोल पे बैठ के मूवमेंट कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ सिमुलेशन वीडियो गेम फॉर डॉक्टर्स ऑन अ वेरी rudimentary level. इट्स जस्ट लाइक दैट। और फाइनली हमारे पास होते हैं एजुकेशनल रोबोट्स। जैसे कि बहुत सारे क्लासरूम्स में स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, तो उन्हीं स्मार्ट टीवीज का स्मार्ट बोर्ड्स का एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर है एजुकेशनल रोबोट्स, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के अनुसार मिलना शुरू हो जाती है। इंडिया में मोस्ट जगह पे ये एप्लीकेबल अभी तक है नहीं है, आई डोंट हैव अ वेरी वास्ट आइडिया अबाउट दैट, बट दीज थिंग्स आर इन डेवलपमेंट एंड मोस्टली some schools have implemented it too.
So from smart boards to robotic boards, these things will give you answers about your questions, or you can say you can say a very smart way to revolutionize the education system inside a classroom. So इस एक you can say इस एक मोटिव के साथ इस चीजों को अभी भी डेवलप और परफेक्ट किया जा रहा है फॉर बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स. For robotics in healthcare specialty, we have three types of robots mainly. First are सर्जिकल रोबोट्स. ये रोबोट्स वो होते हैं जो एक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं. ठीक है. कुछ होते हैं रिहैबिलिटेशन रोबोट्स. ये रोबोट्स काम आते हैं जब कभी हमें फिजिकल थेरेपी की जरूरत होती है, या कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मोबिलिटी प्रॉब्लम है, तो उन्हें रिहैबिलिटेट करना है फिजिकल थेरेपी के साथ, या आप कहें आफ्टर एक्सीडेंट थेरेपी के साथ, या किसी भी तरह की कोई और मूवमेंट थेरेपी है जहाँ पे उन्हें असिस्टेंस लगता है, तो वहां पे हम रिहैबिलिटेशन रोबोट्स को यूज करते हैं. देन वी हैव डायग्नोस्टिक रोबोट्स. डायग्नोस्टिक रोबोट्स क्या करते हैं कि अगर आपके कोई टेस्ट है, जैसे सीटी टेस्ट, सीटी स्कैन्स हो गए, एमआरआई हो गए, तो इनका एनालिसिस कन्वेंशनली कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स किया करते थे. बट अब इन रोबोटिक सिस्टम्स के आने से वो स्कैन्स एक एमएल एआई पावर्ड इंटरफेस से गुजरते हैं, जो डॉक्टर्स को बेनिफिट करता है किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली और परफेक्टली डायग्नोज करने में, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस डायग्नोस्टिक्स में हुआ करते थे. सो टू improve on that, they started developing these kind of diagnostic robots. And finally, the overall benefit of this thing is that it improves the precision and accuracy of the medical practitioner or the doctor, so that हमें अच्छे से अच्छा medical output मिले, या हमें अच्छे से अच्छा treatment मिले, ताकि कहीं कोई कमी की या किसी गलती की गुंजाइश ना रहे. So it's basically like that. Now we'll see some examples of medical robots. So first thing, I will like to start with surgical robots. These three are the top surgical robots that are used worldwide. आपकी स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट में जो है उसका नाम है डाविंसी सर्जिकल रोबोट. इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इनोवेटिव सर्जिकल टेक्नोलॉजीज which is based in USA, and it was one of the first, and it still is one of the best robotic platforms to perform robotic surgeries. Now these surgeries are minimally invasive, so आपकी बॉडी में सिर्फ 3 से 4 छोटे छोटे आप कहें इंसिजन्स या कट्स दिए जाते हैं. आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए ओपन या बहुत बड़ा स्कार नहीं दिया जाता. और इसके ये जो आप 4 हैंड्स या पोर्ट्स देख रहे हैं, so these ports only go into your body, and the physician perform the surgery using this device. So for all surgical robots, the surgeon sits on a console. It's just like a computer, but उसके जो joysticks होते हैं वो काफी versatile होते हैं, ताकि वो हर एक movement को mimic कर पाए. And the surgeon basically use those joysticks to control all 4 of these arms, and these arms go inside your body, and there are tools attached to these arms, some scissors, some cauterers, some pincers, or some staplers too. So these tools go into your body and perform the surgery, which need not be with a big open scar, so that you can heal properly or you can heal quickly. एंड दिस सर्जरी वर वेरी वेरी फास्ट. सो लाइक मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, जो कन्वेंशनली आपको 9 से 10 घंटा लगाया करती है. सो इट्स बेनिफिशियल फॉर द डॉक्टर, बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, बेनिफिशियल फॉर अदर पेशेंट्स टू हु आर वेटिंग इन लाइन फॉर द नेक्स्ट सर्जरी. सो it benefits the society in a very large scale. Same thing is with Stryker Mako. Mako is developed in Europe, specifically in Germany, with Stryker Cooperation. And the CMR versus is a US-based company which is made by Medbotics Corporation. So CMR versus एक बहुत नया रोबोट है, and it is still like it rolled out in 2020. एंड स्ट्राइकर मार्को उसे कम से कम हो गए 8-9 साल हो चुके हैं.
बट ये रोबोट्स आज भी सिर्फ 10% 20% एप्लीकेबल है, क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। सो अभी भी बहुत डेवलपमेंट चल रही है और बहुत डेवलपमेंट आगे हो सकती है, ताकि इन चीजों को बहुत ही एक चीप स्केल पे और बहुत ही परफेक्ट यू कैन से एक परफेक्ट तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि ये बहुत से ज्यादा लोगों को अफेक्ट करे, and it can be very beneficial to the society if these things are developed in so like in so indigenous and better way. नेक्स्ट हम आते हैं रिहेबिलिटेशन रोबोट्स पे। सो रिहेबिलिटेशन रोबोट्स, जैसा आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, इज मेनली फॉर द पेशेंट्स हु हैव गॉन थ्रू फिजिकल ट्रॉमा और यू कैन से एन एम्पुटेशन, और सब ऐसी चीजें जहाँ पे उन्हें डे टू डे टास्क करने में और या काम करने की प्रोसेस में वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। किसी का जब फ्रैक्चर हो जाता है या किसी की एम्पुटेशन हो जाती है, सो दे नीड टाइम फॉर द मसल्स टू रीग्रो, फॉर द मसल्स टू रीट्रेन। आप बहुत देर तक आपका हाथ मूव नहीं कर सकते, अगर आप मूव कर सकते हैं तो आपको फिजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सो टू असिस्ट इन ऑल दैट वी डेवलप रिहेबिलिटेशन रोबोट्स। मोस्टली दीज आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स टू, अगर आपने नाम कहीं सुना होगा। तो एक्सोस्केलेटन्स आर these robotic structures which are placed on your body. तो जैसे अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो आपके हाथ पे ये एक्सोस्केलेटन बैठाया जाएगा, जो आपके हाथ की मूवमेंट करने के लिए आपको मदद करेगा। बिकॉज आपके मसल्स तब इतने वीक होते हैं कि वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते, बट दे नीड टू बी ट्रेन्ड। एंड फिजिकल थेरेपिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, they with using these kind of systems, they can help more patients in a constrained amount of time। क्योंकि अगर एक फिजिकल थेरेपी पेशेंट को 5 से 6 घंटा देना पड़ता है वीकली या यू कैन से डेली, तो रोबोटिक स्ट्रक्चर्स या रोबोटिक सिस्टम यूज करने से हम उस चीज को बहुत कम कर पाएंगे। बिकॉज द फिजिकल थेरेपिस्ट कैन अटेंड 4 to 5 people at a time because he has those things। सो ये चीजें उन लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं जिनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है या जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो ये नहीं कर पाते कि हम बार बार किस तरह से किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा पाए, बिकॉज वीकली विजिट्स और हर 2 दिन के बाद विजिट करना इज नॉट पॉसिबल। सो रिहेबिलिटेशन रोबोट्स हेल्प देम। आप घर पे ही आपके सिस्टम पे बैठे बैठे आपका जो फिजिकल थेरेपी का कोर्स है वो आप घर पे ही कर सकते हैं, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और इस तरह की फिजिकल थेरेपी रोबोट से आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो हैंड आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जॉइंट मूवमेंट्स, आपकी मसल मूवमेंट्स है, उन्हें रिकवर कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में वापस से एक जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देन वी हैव रोबोट्स इन डायग्नोस्टिक्स। सो जैसा मैंने पहले भी कहा कि डायग्नोस्टिक रोबोट्स ये काम आते हैं जब आपकी ट्रीटमेंट की आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है कि व्हाट हैज हैपेंड टू द पेशेंट। नॉर्मली जब पेशेंट सीवियरली इल होते हैं तो उनका एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, सारी चीजें की जाती हैं, और इन सारी चीजों की रिपोर्ट आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो मैन्युअली रीड करते हैं और मैन्युअली इंटरप्रेट करते हैं। अब हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, हर डॉक्टर की स्किल एक जैसी नहीं होती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो बड़े डॉक्टर्स में या बड़े हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते, सो दे लैक दोज रिसोर्सेज, और कभी कभी मिसडायग्नोस हो जाता है। सो टू प्रिवेंट मिसडायग्नोसिस ऑफ योर ailment, we use diagnostic tools और diagnostic robots। ये बेसिकली एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग एल्गोरिदम होता है, जो आपके इनपुट्स, आपके सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या आपके ब्लड रिपोर्ट तक की जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उसे एज इनपुट लेता है, और इसका सिस्टम उस चीज को खुद से एनालाइज करता है, इसके डेटाबेस के साथ कंपेयर करता है। क्योंकि इनके डेटाबेस में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सारे डॉक्टर्स या कहीं सारी बुक्स एक साथ कंटेन ना कर पाए। सो यू कैन से 100 बुक्स जितना डेटा आप इसके एल्गोरिदम में स्टोर करके रख सकते हैं, और आपकी रिपोर्ट्स को ये उस सारे डेटा के साथ मैच करेगा कि ये केस कौन सी चीज के साथ सबसे ज्यादा क्लोज है या कौन सी चीज के साथ सबसे ज्यादा ये सिमिलैरिटी शो करता है। तो उस चीज से आपके सारे स्कैन्स और आपकी सारी ट्रीटमेंट्स और आपके सारे जितने भी इनपुट्स हैं जो डॉक्टर्स को कभी कभी मुश्किल हो सकती है रीड करने में,
तो इन सिस्टम्स की वजह से उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रोसेस कर पाते हैं, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और अगर आपका डायग्नोसिस काफी अच्छा हुआ है तो आपकी ट्रीटमेंट भी उतनी अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप कभी मिस डायग्नोस हो जाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट उतनी ही लंबी होती जाती है। So to for the betterment of the patient, so that he gets a very good treatment without option of misdiagnosis, we use these kind of diagnostic robots. ये तो सारी बात हो गई मेडिकल फील्ड की, कि मेडिसिन में आपकी ट्रीटमेंट होने के पहले आपको रोबोटिक सिस्टम मिल गया ताकि आपकी एलिमेंट की पहचान हो जाए, आपके सर्जरी या आपके एलिमेंट की ट्रीटमेंट के लिए आपको रोबोट मिल गया कि आपकी सर्जरी रोबोटिकली अच्छी हो जाए, सर्जरी के बाद आपको जो रिहेबिलिटेशन करना है आपको उसके लिए भी रोबोट मिल गया। सो हेल्थ केयर इज ओवरऑल कवर्ड विद दिस काइंड ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स। नाउ हमारा सेकंड जो पार्ट है ये है इंडस्ट्री के बारे में, जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो आपके बड़े बड़े मशीनरी जहाँ लगी होती हैं, जो आपके यार्ड्स होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स, जहाँ पे आप चीजों को बिल्ड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पे भी ह्यूमन वर्कर्स का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, कि एक ह्यूमन वर्कर कहीं आपका 10 किलो या 15 किलो उठा सकता है, तो 50 किलो 60 किलो वो कंटिन्यूअसली डे टू डे मिनट बाय मिनट नहीं उठा सकता। सो दीज आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस दैट आर फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर द वर्कर टू गो अराउंड। जैसे आप कंटिन्यूअसली 8 घंटे तक बिना थके काम नहीं कर सकते, आप आपको मूवमेंट पेन्स हो सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कम हो सकती है, आप गलतियां कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं, उसके वजह से प्रोडक्शन लाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो और सबसे बड़ी बात कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ह्यूमन वर्कर के लिए डेंजरस हो सकती है। जैसे जैसे आप जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर्स, द टेम्परेचर गोज अराउंड 500 डिग्री 600 डिग्रीज, तो वहां पे एक ह्यूमन का प्रोलॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में वो अगर 1 घंटा काम करेगा 2 घंटा काम करेगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क मोर देन 2 to 3 hours। बट काम तो करना है, क्योंकि वो वो जो पूरा सिस्टम है वो उसी टेम्परेचर पे काम करता है। तो रिप्लेस दैट ह्यूमन विथ रोबोट। अब रिप्लेस तो मशीन से भी कर सकते थे, बट मशीन जब काम करेगी तो मशीन एरर आने पे या कोई प्रॉब्लम आने पे आपको सेकंड ऑप्शन या सेकंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स उस पे शिफ्ट नहीं होगी। वो एक सिंगल टास्क पे काम करती रहेगी, भले एरर आए, भले ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, भले ही कोई चीज कहीं पे स्टक हो जाए, इट विल कीप डूइंग। और उससे वो मशीन खुद भी खराब हो सकती है, उसमें सेल्फ स्टॉपिंग कभी कभी नहीं भी होती। सो इट्स अ वेरी rudimentary kind of approach. So that's why we use industrial robots, so that we can work efficiently, because efficiency is the main concern of a manufacturing unit, and we can do that thing safely. अब इन सारी चीजों को लेके सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें कौन सा कहाँ यूज करना है। तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक हमारी, अगर हम कहें कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक हम कहें कि एक हमारी Amazon वेयर हाउस है, वो भी कहीं सच कहा जाए तो वो भी एक इंडस्ट्री ही है। जस्ट इमेजिन कि आप एक अमेजोन के वेयर हाउस में हैं, और आपके बहुत सारे अमेजोन के बॉक्सेस हैं जो शिप होने हैं, पैक होने हैं, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कहीं पे रखा हुआ है, वो प्रोडक्ट ला के आपको बॉक्स में रखना है। तो ये सारा तो ऑटोमेशन से हो जाएगा, बट इस इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे रोबोट्स, ये सारी चीजें जो करते हैं, वही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। आपको अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा आइडिया होगा तो कुका, KUKA, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी और बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इस नाम के या इस कंपनी के बनाए हुए रोबोट्स आपको मोस्टली हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। ये रोबोट्स आपके वेल्डिंग से लेके पेंटिंग, इंस्पेक्शन, आपका लिफ्टिंग, आप कह सकते हैं आपका कन्वेयर प्रोसेसिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, पिक इन प्लेस, एवरीथिंग, मोस्टली यही रोबोट्स होते हैं जो इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। आपका सामान यहाँ से वहां करना, ये टास्क करना, किसी चीज पे वो टास्क करना, कहीं आपके नट एंड बोल्ट टाइट करना, कहीं आपका ये लगाना, स्टिकर्स लगाना, यहाँ तक हर एक चीज आपका एड्रेस प्रिंट करके उसके ऊपर पेस्ट करना, ये सारी चीजें भी इन्हीं रोबोट्स के अंदर अंदर आती हैं। ये होते हैं वो रोबोट्स जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में काम करते हैं।
एक बार आपका कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, अब उसे इंडस्ट्रियल लाइन में उसको स्टोर भी करना होता है, तो हमारे पास वेयर हाउस रोबोट्स आ जाते हैं। ये रोबोट्स बेसिकली एक कार की तरह होता है, जो आपके कन्वेयर से आपका बॉक्स उठाएगा या आपका कोई कंपोनेंट उठाएगा। उसको पता होता है कि इसे कहाँ ले जाके रखना है, वो अपने आप उस बॉक्स को उठा के एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करके आपके इंटेंडेड रैक तक चला जाता है और उसे वहां पे प्लेस कर देता है, ताकि वो कहीं पे और पोस्ट होना है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसको एक्सेस करेगा। तो वेयर हाउस रोबोट का काम ये होता है कि आप एक जगह पे सामान उठाओ, उसे अपने वेयर हाउस के दूसरे सेक्शन में उसकी डेसिग्नेटेड एरिया पे जाके रख दो। दैट्स द थिंग। आपने बड़े बड़े वर्क इसमें फोर्कलिफ्ट देखे होंगे, जहाँ पे कार जैसे एक ड्राइवर बैठा होता है, एक कार जैसा फोर्कलिफ्ट होती है, जो आपके बड़े बड़े वुडन पैलेट्स या आपकी मशीनरीज को एक जगह से उठा के वेयर हाउस में दूसरी जगह रख देता है। सो नाउ these are also getting substituted by warehouse robots, though, because these things can work tirelessly day and night and the production line never stops. Similarly, आजकल जो एक नई इन्वेंशन शुरू हुई है, दोज आर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू। हमारे पास अभी एग्रीकल्चर रोबोट्स भी आने लगे। क्या एग्रीकल्चर रोबोट्स आपकी जो खेत है, इसकी सॉइल ऑन ऑन साइट सॉइल टेस्टिंग, आपके सीड क्वालिटी टेस्टिंग, आपका वाटर मॉनिटरिंग, आप कहें आपकी वीडिंग या आपकी सोइंग, इसमें भी हेल्प करते हैं। तो आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर रोबोट्स आर वेरी बेनिफिशियल ऑन अ वेरी ग्रास रूट लेवल, बिकॉज बहुत सारी चीजों के रिसोर्सेज ऑन ग्राउंड नहीं हो पाते। आपको अगर सॉइल टेस्ट करनी है, तो सॉइल टेस्टिंग टेक्स अराउंड 7 to 8 days if you are sending it to a lab, but these kind of robots do it on site, so आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपको ये वाला फर्टिलाइजर कम पड़ रहा है, so you can arrange that and you can do it more quickly, because agriculture is also a time dependent thing। अगर आपने सही समय पर सही स्टेप एग्रीकल्चर नहीं उठाया, तो फसल कभी भी खराब हो सकती है। तो उन चीजों को मॉनिटर करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग एग्रीकल्चर रोबोट्स होते हैं, और इन सब चीजों में और डेवलपमेंट करने की और जरूरत है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सके। क्योंकि रोबोट्स आजकल इनकी आपकी इनकी रीच या इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड लेवल तक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वेरिएशन ज्यादा अवेलेबल नहीं। सो अगर इसके ऊपर और रिसर्च और डेवलपमेंट और पे और काम किया जाता है, सो दे विल बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन। जस्ट पहले जैसे कि पहले बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बट नाउ मोबाइल इज इन every child's hand or every person's hand. So similarly, these kind of robots are also being developed and will be developed so that they can be as easily accessible as we access a mobile phone today. And yes, these are finally the robots in everyday life. मैंने आपको रूम्बा वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताया था। इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट क्लीन्स योर होम व्हेन यू आर इफ इवन इफ यू आर नॉट एट होम। तो अगर आप घर पे नहीं हैं, आपने इस वैक्यूम क्लीनर को कमांड करके छोड़ दिया कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर मेरा घर साफ कर देना, सो इट विल मूव इनसाइड योर हाउस। इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एनी ऑब्स्टिकल, जैसे आपकी चेयर कहीं रखी हुई है, आपका टेबल कहाँ रखा हुआ है, तो ये अपने आप उस चीज को सेंस करके अपना पाथ बना के आपका घर या आपका रूम एविडेंटली क्लियर कर देगा। हमारे पास स्मार्ट होम असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एलेक्सा है, हमारे पास सीरी है, हमारे पास गूगल डॉट है। तो ये सारी चीजें हमें होम ऑटोमेशन कंट्रोल करने में काम करती हैं। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो रोबोटिक सिस्टम्स, जो आपकी चीजों को या आपके इनपुट्स, आपके कमांड्स को सुनते हैं और आपके लिए कोई टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। और इन सारी चीजों से हमें बेसिकली हमें कभी कभी सिक्योरिटी की भी बात होती है, तो हमारे पास एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स भी होते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके घर के दरवाजे लॉक कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपके आपके घर के लाइट्स, आपके घर की एसी स्मार्ट ऑटोमेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए भी एक सेंट्रल रोबोट सिस्टम ही काम आता है। और इन सब चीजों से हमें टाइम की, एफर्ट की और आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा एनरिचमेंट होती है, ताकि आप बहुत सारी चीजों को बिना ज्यादा मेहनत करे एक्सेस कर पाए या कंट्रोल कर पाए। अब रोबोटिक्स का जितना आज तक डेवलपमेंट हुआ है, ये आप सच माने तो ज्यादा से ज्यादा 20 to 25% है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और बहुत ज्यादा ग्रोथ हो भी रही है। जब से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकॉर्पोरेशन रोबोटिक्स में होना शुरू हुआ है, इट हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स।
बहुत सारी चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं थी, आज एमएल और एआई की मदद से पॉसिबल होने लगी हैं। बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम्स जो पहले रिजिड हुआ करते थे या बहुत ज्यादा मैकेनिकल हुआ करते थे, आजकल बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मोड्स में आने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका यूजर इंटरफेस और उनका इंटरेक्शन काफी ज्यादा इजी हो गया है ह्यूमंस के साथ। क्योंकि मैकेनिकल चीज और एक सॉफ्ट टिश्यू लाइक चीज से बना हुआ रोबोट आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में डिफरेंस देता है। और आजकल कंपेनियन रोबोट्स जब से डेवलप होना शुरू हुए हैं, तब से ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन भी काफी बड़ा है। उसी की वजह से जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, उनकी दवाइयाँ जो देनी होती हैं टाइम पे, देर आर ऑल्सो रोबोटिक सिस्टम दैट यू कैन प्लेस एट योर होम, जो एक स्पेसिफिक टाइम पे आपकी पेशेंट के पास आके उनको स्पेसिफिक उनकी उस टाइम की वो जो दवाई है, वो एक कप पे पानी के साथ टेबल साइड में दे के जाएगा। There are also these kind of robots that are available in hospitals too sometimes. These are automated companions that take care of your patient in every aspect possible. अगर उनका हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही है, अगर उनका हार्ट बीट बढ़ता है तो वो रोबोट सेंस कर लेता है, उसके इनपुट सेंसर्स होते हैं। अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, वो सारी चीजें भी उसी रोबोट में कंट्रोल कर की जा सकती है या इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। But these things are very beneficial from social point of view too. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स घर पर अकेला होता है, मॉनिटर करने के लिए उनके पास 24/7 कोई रह नहीं सकता। So these things can benefit those kind of patients or those kind of people. And overall एक सेफ कम्युनिटी भी इन्हीं चीजों की वजह से और बेहतर होती जाती है। और there is always a scope for potential for scope for greater autonomy and smarter devices. So ज्यादा से ज्यादा अब जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो इस चीज पे हो रही है कि इस चीजों का हम और स्मार्ट कैसे बनाएं, ताकि हमें कम से कम उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा चीज अपने आप करना सीखे। क्योंकि जितनी ज्यादा वो चीज अपने आप करना सीखेंगे या जितनी चीजें अपने आप करना प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे, उतने ह्यूमन को या ह्यूमन कंट्रोलर को या उसके ह्यूमन काउंटर पार्ट को उतने एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। पहले जिस रोबोट को अगर 10 इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, अगर स्मार्ट रोबोट सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन में वही सारे काम करता है, तो वी आर बेसिकली सेविंग आवर टाइम एंड आवर एनर्जी, आवर ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, सो दैट हम उन सारी चीजों को किसी और जगह लगाकर कुछ और प्रोडक्टिव चीज कर पाए। सो देर इज द नीड एंड देर इज एक्चुअली वर्क गोइंग ऑन टू मेक द रोबोटिक सिस्टम्स and the automation system more smarter and more autonomous. And as you all are students here, so there, if if all the students or most of your students are very interested in the field of robotics, then there are many ways that you can start with the robotic things at a very young age. रोबोटिक्स इंजीनियर होने के लिए या रोबोटिक्स सीखने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा लाइक आप 12th पास या 12th पास होने के बाद ही आप रोबोटिक्स समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोबोटिक्स एक कंसेप्ट है। रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से भी समझना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको वो उतनी एक्सेसिबिलिटी ना हो, बट नॉलेज कैन बी लर्न फ्रॉम अ वेरी यंग एज। अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, सो आपके स्कूल में अगर रोबोटिक्स क्लब्स हैं तो आप उसको ज्वाइन करिए। अगर रोबोटिक क्लब्स नहीं है तो आप एक क्लब क्रिएट करिए, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स जो स्कूल लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कैंप खुद है, ये भी कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो टेक पार्ट इन दिस, वर्कशॉप अटेंड करिए। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या आपके पास, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं है। So you can gain as much knowledge as possible, and you can start from a very small thing and it can turn to a huge. रोबोटिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मेन थॉट यही होता है कि एवरी आइडिया कैन क्रिएट समथिंग बिग। आपका एक छोटा सा आइडिया कि ये रिक्वायरमेंट हमें दिख रही है एंड इट नीड्स टू बी डन, कैन बी डेवलप्ड इनटू समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूमंगस दैट विल बेनिफिट very 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 large population. सो इट कैन बी एनीथिंग। एक छोटी से छोटी आइडिया भी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट वो आइडिया जनरेशन, वो इंटरेस्ट या वो चीज, वो थिंकिंग कैपेसिटी आप अकेले नहीं ले पाएंगे। सो यू नीड टू कोलैबोरेट, यू नीड टू गो इनटू थिंग्स, यू नीड टू लर्न लर्न some simple but
enriching things, you need to gain experience there too. जब तक आप इन चीजों का एक्सपीरियंस लेंगे तभी आप इन चीजों को प्रोसेस कर पाएंगे कि oh, this is where we can go. And because you guys are too young, but for the elder students that are present here, there are very like high capacity, you can say, very prestigious career paths are there too in the field of robotics, because research is now mainly dependent upon developing robotic systems which can do various things. So we only talked about in this workshop, in this seminar about robotics in medical and industry, but there are hundreds and hundreds of applications that can utilize a robotic system. So developing these, or you can say first developing these, then manufacturing these, then sustaining those things, those all those all help in creating various career paths for various people. And there is a very big requirement of robotics engineering in today's world. So it can, like, it is not just for research or it's not just for some knowledge gaining, it is actually executable too. So people like us will always welcome fresh minds to give us better ideas to work together. And these are always the things that start from the ground level or from the grassroots level, and then we create those or we uplift those to create something more better and like the best that we can. And for the conclusion, like for with this slide, I will conclude my presentation. So the robots and the robotic systems are transforming the healthcare industry and the manufacturing industry by a revolution. And there are n number of possibilities that are present in this field. And robotics being robotics is the base that it is always flexible. And it is very exciting if you try to divulge in it and you try to explore more and more. So there is no end to what variation you can go into in these robotic systems or in robotic research. And with that, I would like to conclude my presentation. Thank you so much. And now I think we can take the questions, right? Aniket, are you there? Yeah, we can take the question. Yes. But before we take the questions, I'd like, my video is there, right? Okay. Thank you so much, Mr. Dhruva, for this analysis session. First of all, I'd like to extend my heartfelt gratitude to you on behalf of my team on the contribution to the success of this exclusive fortnightly session on From Theory to Practice, Robotics in Healthcare Industry. So moving on to the questions from a lovely student. So I'd like to make mention to the students that if you have any questions, please turn on your videos and virtually raise your hands, and we will connect you one by one, and you may directly ask your questions to Mr. Dhruva directly. So who do we have first? All right, so many hands raised. Good evening, sir. Yeah, if it Good evening, sir. Yeah, Akshat. Yes. Hi, Akshat. Sir, I have a question that are robotics harmful towards mankind? No, see, Akshat, robotics is actually made to safeguard the mankind. So robots बने ही इसलिए थे ताकि एक ह्यूमन को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को हार्म के रास्ते से हटाया जा सके, ताकि उसके ऊपर वो चीजें ना आ पाए या वो एक्सपीरियंस उस पर ना आ पाए या वो एक्स्ट्रा की प्रॉब्लम उसके ऊपर ना आ पाए जो वो सहन नहीं कर सकता. So robotics is basically safeguarding the human being or a human worker and doing all the harmful things on its own. Okay. Sir, I have another question. What are the disadvantages of robotics? Disadvantages of robotics. Okay. Yes, so there are disadvantages of robotics. तो सबसे पहले है ओवर डिपेंडेंस. जैसे सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि अगर किसी के घर पे एलेक्सा है तो देयर इज अ डिपेंडेंस दैट एलेक्सा अलार्म लगा दो 6 बजे का, एलेक्सा ये कर दो, रिमाइंडर लगा दो. एंड समटाइम्स आप इतने ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यू फॉरगेट टू डू समथिंग एल्स.
और जब एलेक्सा सही से काम नहीं करेगी, so you will miss your alarm, so you will be late for any meeting, or you can late for any your class or something, or you if the reminder is not working, आप project करना भूल गए. So on robotics, the main disadvantage is over dependence on robotic systems. तो अगर आप डिपेंडेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, so there are no, you can say, disadvantages as its own, but yes, there is a slight disadvantage of over depending on robotic systems rather than keeping it 50-50. ठीक है. Can we move on to Akshay? Yes, sir. What's your question? Sir, I just asked that. Akshay just had his Okay. question. Can we move on to Pankaj? You can unmute and ask your question. Sir, Hmm. what are the advantages of robotics? देखो, एडवांटेजेस और रोबोटिक्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग या किसी एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हार्म हो सकता है, तो रोबोट्स उस ह्यूमन बीइंग को वहां रिप्लेस करते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल में, अगर कोई बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है, ठीक है, जैसे आप बॉम्ब ढूंढने जा रहे हो, सो वो एरिया एक ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकता है ना, कि कहीं अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, सो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ वेरी बिग कंसर्न. सो देयरफॉर वी डेवलप बॉम्ब डिटेक्शन रोबोट्स, ताकि उस डेंजरस जगह पे या उस डेंजरस पोजीशन में एक ह्यूमन बीइंग को ना जाना पड़े, वो एक दूर सेफ एनवायरनमेंट में रह के उस पोजीशन तक एक रोबोट पहुंचाए, और वो रोबोट वही काम करेगा जो एक ह्यूमन बीइंग कर रहा था, बट इन दिस केस द ह्यूमन इज ऑलवेज सेफ. सो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि आप ह्यूमन को जितना हो सके उतना सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं एक हार्मफुल एनवायरनमेंट से. तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द रोबोटिक सिस्टम्स. ठीक है. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Arjun. We can hear you. Yes, sir. Sir, I Yes, had like a few questions. Sir, my first question was like, when a robot is already programmed, can we reprogram it? यस. सो डिपेंड करता है कि अगर आप रोबोट डेवलप कर रहे हैं, सो यस, रोबोट्स आर रीप्रोग्रामेबल. आपका जो रोबोट, अगर सिंपल एग्जांपल, अगर किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आपका कोई रोबोट पेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, सो यू कैन यूज दैट सेम रोबोट, रीप्रोग्राम इट, कि वो जाके वेल्डिंग करेगा. एंड सेम रोबोट आपका डेंटिंग पेंटिंग भी कर सकता है या इंस्पेक्शन भी कर सकता है. सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर उस रोबोट के फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में वो चीज होगी, सो यस, यू कैन ऑलवेज रीप्रोग्राम देम. दैट्स व्हाई दे आर रोबोट्स. अगर रीप्रोग्राम नहीं हो पाते तो हम उन्हें भी मशीन ही कहते. हम इसलिए रोबोट कह रहे हैं ताकि हम उन्हें रीप्रोग्राम कर पा रहे हैं. एंड दोस आर फ्लेक्सिबल इन दैट डोमेन. Like, sir, how can robots do surgeries? Like, how can they do surgeries? And देखो, एक्चुअली मुझे बताया गया था कि यहाँ पे 3rd to 12th स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए मैंने रोबोटिक सर्जरी का क्लिप नहीं डाला, बिकॉज इट्स ऑल ब्लड एंड लाइक इट गोस. सो इसीलिए मैं वो चीज इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया. बट जब सर्जरी होती है तो सर्जन पे सर्जरी कैसे करते हैं? आपकी छोटी छोटी हैंड मूवमेंट्स होती है, एक छोटा सा हैंड ने कट दिया, एक छोटा सा हैंड ने स्टिच किया, तो वो जो हैंड मूवमेंट्स है, ये रोबोटिक टूल्स उन्हीं चीजों को मिमिक करता है. जितना आपका हैंड मूव होता है उतना ही ये रोबोटिक टूल भी मूव होता है, उतना ही कट करता है, उतना ही स्टिच करता है. सो दो रोबोटिक टूल्स आर मिमिकिंग द ह्यूमन हैंड मूवमेंट. और जैसे ह्यूमन एक सर्जरी करता है, सेम तरीके से वो रोबोट भी सर्जरी करता है. ठीक. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Sir, my name is Avika Jha and I have a Mhm. question regarding medical robots. ओके. Sir, just in the beginning of the class, you have told us Mhm. that what is the difference between a robot and a machine, right? Yes. The robot has a capability of thinking.
Yes. I have a question. How does the medical robot which surgeons use for surgery have the capability of thinking, and how it is not a machine but a robot? Mhm. Is there like आपका क्वेश्चन और है या this is the end? Is it okay? No, Is it sir, like this is it. I want to know the difference between, yeah. Oh, okay, I okay, want to okay. know in depth. हाँ, Right. okay. ठीक है. तो as just one question from my side. Are you like above 10th standard? Because then I can go technical. So अगर आपको चाहिए हो, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं अभी? हेलो हेलो is she still connected? 11th. 11. Oh, okay, nice. So and then I can go in depth. So देखो, जैसे मैंने डिफरेंस बताया था कि machine is something that you program it, or you can say you command it for once and it keeps on repeating the same thing. So first thing is that the surgical robot is not a device that is continuously repeating. Yes. अब हो क्या रहा है कि एक सर्जन एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो अब इसी चीज में जो रोबोट की मूवमेंट है, जैसे अगर सर्जन ने 2 सेंटीमीटर हैंड मूव किया, तो अगर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में अगर वो सर्जन ऑन बॉडी या खुद अपने हाथ से सर्जरी कर रहा होता, सो हिज 2 सेंटीमीटर मूवमेंट ऑफ हिज हैंड वुड हैव रिजल्टेड इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंसिशन, करेक्ट? बट हमारे रोबोटिक सिस्टम में हम इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्यूरेसी है या उसका जो ग्रेडियंट है, मूवमेंट ग्रेडियंट होता है, तो आप पहली बात तो अपने सेंसर्स की वजह से और आपके कंट्रोलर से आप उस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भले ही सर्जन आपका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैंड मूवमेंट करे, वहां पे जो इंसिजन होगा वो 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर ही होगा. So this type of scaling of movement can be done. That's why we call it a robotic system, because it is scaling up and down the movement. Secondly, अगर कहीं पे जर्क आता है, जस्ट इमेजिन अगर बहुत ही सिली केस है, जस्ट इमेजिन इफ सर्जन स्नीज्ड ड्यूरिंग अ रोबोट, ठीक है, छींक दिया उसने, एंड यू नो व्हाइल वी स्नीज देयर इज इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, लाइक कभी हाथ हिल जाता है या मुड़ जाता है. तो अगर वो फिजिकली खुद सर्जरी कर रहा होता, तो इट कुड हैव बीन मिसहैप, राइट? अगर वो सर्जिकल सिस्टम पे भी बैठा हुआ है, स्टिल अगर उसने छींक दिया और उसका हाथ गलती से मूव हो गया, सो आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे वो जो टूल है वो भी बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा, गलती से अनइंटेंशनल मूवमेंट हो जाएगी. बट because this is a surgical robotic system, it has that those security measures कि कोई भी अनवांटेड मूवमेंट अगर डिटेक्ट होती है, तो वो आगे टूल तक ट्रांसमिट नहीं होती. अगर कुछ अनवांटेड मूवमेंट, जैसे जैसे मैंने बताया, अगर वो छींक दिया, अनवांटेड मूवमेंट हाथ की हो गई, झटका लग गया या कुछ चीज हो गया, बट क्योंकि ये सिस्टम इतना स्मार्ट है, जो चीज को एक्सेस कर सकता है या समझ सकता है कि दिस मूवमेंट इज नॉट इंटेंशनल, देयरफॉर आई एम नॉट ट्रांसफरिंग दिस मूवमेंट टू माई सर्जिकल टूल. तो ये चीज इस रोबोटिक सिस्टम को मशीन से अलग बनाती है. इज इट गुड? हेलो हेलो. Aniket, is she still connected, or we can take the next question? Yeah, yes, sir, I'm still connected. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you for the question. Thank you, sir. Thank you, sir. Can we have the next question from Ahana Jaiswal? Can you unmute, please? Yes, sir. My question was that the
why are robots used like I can say that why are robots used in front of humans, and why can humans not do all this stuff and robots can? See, Anna, the thing is, humans have a capacity, right? Just imagine if uh, a task needs you walking like 10 kilometers per day. So a human will not be able to do it on day-to-day basis, like going 10 kilometers, coming back 10 kilometers, or walking for 10 kilometers inside a factory, you can say, if he needs to like to restock or something. So human body or human being has a physical challenges, like it cannot lift beyond certain weight, it cannot move beyond certain distance. But a mechanical thing does not have these kind of constraints. So that's why we use these robotic systems, so that the humans will need to do very small work, but the overall task will be complete. Is it okay? Sir, I understand, but how do robots not get tired? Because they are because they are mechanical systems. So just like if you try to run, okay, from you can say your city to another city, so you will get tired after like 5 kilometers, 10 kilometers. But you drive in a car and car goes for 100 kilometers, 200 kilometers. We never say that the car is tired, the car should rest for 6 hours and the car should sleep, right? Similarly, Yes. the robots are also mechanical things. They also get tired, but after very, very long time. Like if you drive your car for 12 hours or 15 hours, then we say, okay, let it rest for 30 minutes and then we can start again. Same is with robots. Robots will get tired, but after hundreds and hundreds of hours of working. Okay. And we have the question from Kunal. Can you unmute yourself and ask your question? Sir, when is robotics going to start in the school? Uh, like in which sense, Kunal? 5th Pearl Vishwa Bharati Public School. Mm-hmm. So you are asking when will robotics start in school? Yes. See, Kunal, that thing is in the control of your principal and your teachers. So, if you are interested, then you need to pursue them to open at least a robotics club in your school so that you and your fellow students can actively participate in that. But the decisions are mainly dependent upon your school teachers and principals. But if you are like if many of the students show interest, then they will be more than happy to help you out in this robotics domain or any robotics club. So, sir, in this robotics club, we are going to make robots. See, that depends upon how old you are and how technical knowledge do you have. Because robotics can go from a very beginner level to very advanced level. So in schools, they will teach you how a robot moves, how can you make very simple robots, and how can you make some simple mechanisms that can develop or that are used in a very complex robotic system. So that all depends upon how old you are and in which class you are and how much your teachers are investing their time in teaching you. So that all matters. But yes, if you are interested enough, your school will be happy to help you out in learning robotics. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Ashumanjan Sahu from Delhi World Public School, Rajkot. Mhm. I have now, as you explained that robots are used in industrial and medical purposes. Mhm. Could I please know something about aeronautical robots?
Yes, yes. See, robots, because the topic of today's lecture was robotics in healthcare and industry. But as I mentioned in my presentation, there are n number of applications for a robot. Your robot, your robots are present in aerospace. Your robots are present in space. Your robots are present underwater. See, if you can consider a drone, you know, a very smart drone, that can also be considered a robot because an autonomous drone scans the radar, finds the target, shoots a missile. So, if that robot is autonomous or taking very limited inputs from its controller, then that drone can also be called a robot. Similarly, if there is autonomous submarine, which is detecting uh, new fishes on the ocean bed, or it is mining something, or the Mars rover that they sent on Mars to analyze the Mars topology, that is also a robot. So yes, robots have n number of applications in n number of fields. So whatever field you can think of, robots are present there. Sir, I want to ask that what is the main purpose of that? See, that's what I said. The main purpose of the robot is to safeguard a human. If just imagine if you need to map the ocean floor, you have to go till ocean floor and then you have to see what flora fauna is there, what kind of fishes exist on the ocean floor. So to send a human in a submarine for very very long time, for like 12 hours, 15 hours a day, it will be very tiresome for the person or the sailor, right? But if you send a drone and the human operator is on land sitting in his office and you are completing the same task, so will it be beneficial or not? Right? So a human need not do the challenging or the dangerous task on his own. He has a substitute to do all these things. It's like that. Okay? Okay, we can just take a few more questions. We'll just take 3 more. And Yeah, okay. Arjun, can you please ask your question? Yes, sir. Sir, I had a question related to diagnostic robot. Mm-hmm. Sir, if the diagnostic robots will diagnose the disease or anything like that, sir, Mm-hmm. it will cost more than usual if it will be See, used for, like you were uh, saying that mhm, who cannot afford that, and mhm, they can be treated with this. mhm. So See, they will be charged more with this. Arjun, the thing is, diagnostic robots that are because though the diagnostic robots are very limited now, correct? But they do work in a more faster way. Okay, so as you said, yes, it is very expensive now because there are very less number of robots. So if all the workload is on 3 robots or 4 robots, then yes, those systems will be costly. But when we try to develop many more number of such kind of diagnostic tools or diagnostic robots, so as the number of institutes or the number of institutes that apply these kind of robots increase, the cost will obviously come down. So it is kind of work in progress. But yes, currently, like now, today, you can say the diagnostic tools cost more, but uh, with more number of such kind of robots available in the different hospitals, the cost will ultimately come down. Not now, but like in 5 years or like in say 7 years, as I simply just say to everyone, robotics is simply like mobiles. In 2010s, very less people had mobiles, and now everybody had at least two because mobiles are too cheap now. Earlier, mobiles were too expensive and nobody had it. So it's just like that. The number of pieces will increase, the cost will come down. We just need to develop more. That's it. Sir, and the robots, how will it detect the features of an object, like you said in the starting, that the weight of an object, it will detect if it is out of its range or inside its range. So how will it detect without lifting the object? See, there are sensors that are available. You can say on a forklift.
before lifting the load itself, it can have sensors on its plate that can give you, okay, this is the weight. Like we have weight sensors, we have weighing machines, we have all seen different digital weighing machines, analog weighing machines. So some kind of sensors, piezoelectric sensors, or some kind of other sensors, electromagnetic sensors, we can have there that will detect whether this thing is heavy or not. You can get that input from anywhere. And if that input command is recognized by the controller that no, this thing is way past our limits, then that command will not be executed. So it all depends upon where your sensor is, how your sensor is using, and where are you using your sensor. So it's just like that. That's the beauty of robotics, that it can be very flexible. You can use your sensors and actuators as you wish. Okay. Thank you. Since we're running out of time, we'll just take one last question. Yeah, please. Adya, Prince Adya, can you please ask your question? Yes, you're on mute. Can you please ask Adya, your you are question? on mute. You can speak up. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, can you suggest about camp examination books? Which All examination? the camp examination. Actually, for the NASTA examination, all Oh, the okay. resources are available online. And for how you can connect and how you can download them, you can connect with the support numbers that we have. They'll guide you completely. And you can visit our website, Camp Portal, and over there you can find all the details, the brochures and the resource materials, everything. Thank you. So can we have one more question, or is that all, Aniket? I think for those who, because there are a lot of questions still, I still have like, yes, I can see. yeah. So what Okay, we can do is for the students, if you your question has been unanswered and you would like to get the answers to the question, you can drop a mail. I'll just write my email ID in the chat below. So you can send me the questions and I'll connect with Mr. Dhruva and get back with the answers. So what I can do is I can collect the questions, I can compile them, and I will share it with you. And whenever you get time, you can just respond back and I'll share it with the students all together. Yeah, sure, that will be perfect. Anytime you just, whenever you get all the questions, please revert back to me. I will answer Definitely. each and every question. Sure. Thank you for this insightful session. Thank you so much, Aniket, for inviting me to such a wonderful Thank you. It was a session with pleasure. wonderful audience. Likewise. Thank you so much. It was a Thank you so pleasure. much. Thank you. Thank you. So as we conclude today's sessions, I hope you have gained valuable insights into robotics in healthcare and industry. Remember that the journey to a successful career starts with curiosity and willingness to learn. Thank you once again to our esteemed speaker and to all of you participating. Have a great day ahead. And before we end the session, I would like to request you all to fill a quick survey form. This will help us understand your environment and guide us in serving you better. I'm sharing the link in the chat below. Please take your time. And if you have any further questions or need additional support, feel free to reach out at any of our social media handles or headline numbers. We are here to assist you on your path to success. Thank you for your active participation and dedication to your personal growth and professional growth. Thank you so much, Mr. Kanzode. Now we will end the session and we will all meet soon for another exciting session of camp on 29th of August at 4 p.m. where we will be talking about we have another session, which is technology, innovation, and scientific social responsibility. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Have a nice day ahead. Thank you.